قوم ایک مذہب، سجدہ ایک ہستی کو، مانا خدا کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ماہ رمضان ایک انعام کی صورت میں ملا ہے ہمیں، جہاں ہم سمجھیں گے ایک دوسرے کے تقاضوں کو، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں۔ آداب، میں محی الدین آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں، آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام رمضان کی رونقیں کے ایک اور خوبصورت ایپیسوڈ میں۔ آج ہم موجود ہیں شہر ممبرا میں۔ ممبرا جو کہ ممبئی سے 40 کلومیٹر کی دوری پر واقع ایک مضافاتی علاقہ ہے، یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت پائی جاتی ہے۔ ممبئی سے قریب ہونے کی وجہ سے ممبرا میں جو ہے وہ ممبئی کی ثقافت دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہاں پر رمضان کی رونقیں کا ماحول قابل دید ہوتا ہے۔ مسجدیں نمازیوں سے گلزار ہو جاتی ہے، اور افطاری و سحر کا نظام اور اوقات جو ہے وہ قابل دید ہوتے ہیں۔ چلیے آپ کو سیدھے لے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں ممبرا سے رمضان کی رونقیں۔ ممبئی سے تقریباً 40 کلومیٹر کی دوری پر واقع ممبرا شہر مسلم اکثریت والا علاقہ ہے۔ یہ شہر ممبئی کے مضافات اور تھانہ ضلع میں واقع ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں بسا یہ شہر ممبئی سے قریب ہے، اور اسی وجہ سے ممبئی کے مسلمانوں کی یہاں بڑی آبادی ہے۔ ممبئی شہر کی آبادی میں اضافہ، چھوٹے مکانات اور دیگر مسائل کی بنیاد پر ممبئی کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے شہر ممبرا کو اپنا مسکن بنایا۔ یہ جو کوسا ہے تو یہ دراصل کوہسار سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور یہ کوہسار سے ہوتا ہوا، کیونکہ یہ پہاڑ کے دامن میں ہے، یہ سہیادری جو پہاڑ آپ دیکھتے ہیں، اس طرف کھاڑی ہے اور ایک طرف پہاڑ ہے، تو یہ جو پہاڑوں کا علاقہ ہے یہ سہیادری کا ہے، اور یہ دامن میں ہے کوسا کا گاؤں، تو اسے کوسار سے کوسا کر دیا گیا ہوگا کبھی۔ یہ ایک بہت پرانا گاؤں ہوا کرتا تھا سب سے پہلے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم اسٹیشن پہ اترتے تھے، اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ مجھے ممبرا کوسا میں آئے ہوئے لگ بھگ 41 سال ہو گئے۔ جب میں صرف 21 سال کا تھا تو ہم کرلا سے یہاں چلے آئے تھے، اور یہ بڑا پرفضا اور بہت خوبصورت مقام ہوا کرتا تھا، اور اب بھی ہے، یقیناً ہے۔ تو ممبرا اسٹیشن کے سامنے کچھ آبادی تھی، جہاں اب رضوی کی مسجد اور بڑی رونق اور بڑی بلڈنگیں بن گئی ہیں۔ اس کے بعد جب ہم وہاں سے چلتے تھے تو خواجہ فخر الدین صاحب کا رحمہ کا مزار تھا، اور اب بھی ہے، ماشاءاللہ بڑی رونقیں ہوتی ہیں وہاں سے۔ وہاں ایک دادی کالونی ہوا کرتی تو اس کے بعد پھر پورا علاقہ سنسان تھا۔ سڑک کے دونوں طرف دھان کے کھیت تھے، بڑی کھیتیاں ہوتی تھی یہاں چاول کی۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے تھے تو یہ کوسا کا گاؤں آتا تھا۔ کوسا کا گاؤں مسلمانوں اور یہاں کے مہاراشٹرینس، ان دونوں کی ملی جلی آبادی ہوا کرتی تھی، اور وہ سارے خاندان ایک دوسرے کے ساتھ بڑی خیر سگالی کے ساتھ، بڑی محبت اور اخوت کے ساتھ رہتے تھے۔ ممبرا جو ہے ایک غریب علاقہ تھا، بمبئی سے چھوٹا سا روم بیچ کے آتے تھے، یہاں پہ اچھی خاصی پراپرٹی مل جاتی تھی۔ اس طرح سے لوگ وہاں سے غریب لوگ آتے گئے اور یہاں پہ اپنا کاروبار شروع کیے، اور اس طرح سے آبادی یہاں کی بڑھتی گئی۔ اور اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ممبرا بہت کشادہ دامن ہے، یہاں کے لوگوں نے استقبال کیا۔ میں خود یہاں پہ کوسا چھوٹا سا گاؤں تھا، لوگوں نے بہت عزت دی مجھے، اور ہر معاملے میں کئی مساجد کے بنے یہاں پہ بنیاد ڈلی، سب کچھ ہوا، دین کا کام اور ہوتا رہا، انشاءاللہ کرتے رہے۔ ممبرا زیادہ قدیم شہر نہیں ہے، اور اس شہر کے وجود میں آنے کی کہانی بھی زیادہ پرانی نہیں ہے۔ ممبرا
ابتدائی زمانے میں جہاز سازی کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ 1975 تک ممرا کی بیشتر زمین زراعت کے لیے استعمال کی جاتی تھی، لیکن ممبئی کی آبادی میں بے تحاشا اضافے کے سبب ممرا کی زراعتی زمین کو 1975 میں اربنائز کیا گیا اور پھر اس کے بعد ممبرا کی آبادی میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس شہر میں ممبئی کے علاوہ دیگر شہروں کے لوگ بھی آ کر بسنا شروع ہوئے۔ میں ممبرا کو اور کوسا کو اس طرح بھی بڑا عزیز رکھتا ہوں، سلام کرتا ہوں کہ اس علاقے نے ان لوگوں کو بہت آرام دہ مکانات دیے، اور جو لوگ بہت چھوٹی چھوٹی کھلیوں اور کمروں میں رہا کرتے تھے، وہ کوئی 1 BHK میں آ گیا، کسی نے 1 روم کچن لے لیا، کسی نے 2 BHK لے لیا۔ اس طرح سے یہ آبادی بڑھتی چلی گئی۔ ہمارے بہت سے برادران عزیز ہیں جو بمبئی میں یا کہیں دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو وہ یہ بولتے ہیں کہ میں بمبئی میں رہتا ہوں، یا بہت اگر تکلف سے کام دیا تو کہتے ہیں کہ میں تھانہ میں رہتا ہوں، لیکن میں دنیا کے کسی بھی کونے میں جاتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں ممبرا میں رہتا ہوں۔ مجھے بہت فخر ہے میرے شہر میں، اور مجھے فخر ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس زمین نے مجھے شناخت دی، اس زمین سے میری پہچان ہوئی، اسی زمین سے میں آگے بڑھا، یہیں سے میری شاعری کی شروعات ہوئی، یہیں سے میری شاعری کی دنیا میں میری شناخت ہوئی، پہچان ہوئی، میں نے دنیا کا ممرا جو ہے یہ اکثر مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اور ممرا میں پورے ہندوستان سے لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں۔ بہت بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی یہ، اور خاص طور پر وہ مسلمان جو کہیں مکان لینے کے بمبئی میں، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ بمبئی میں مکانات بہت مہنگے ہیں، تو جس کو کہیں مکان کے لیے کہیں گنجائش نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کے فضل سے اس کے لیے ممرا جو ہے وہ اپنا دامن کھولے ہوئے ہے۔ تو پورے ہندوستان سے آئے ہوئے مسلمان جو ہے وہ یہاں آباد ہیں۔ بہت بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے یہاں، اور یہاں کے مسلمانوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ رمضان کے موقع پر عام مسلمانوں کے لیے افطار کا اہتمام کرتے ہیں۔ غریبوں، ضرورت مندوں، پریشان حالوں کی ممرا کے مسلمان بڑی تعداد میں مدد کرتے ہیں۔ مسلم اکثریتی علاقہ ہونے کے سبب ممرا میں ماہ رمضان کی رونقیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ماہ رمضان میں یہاں کی مشترکہ تہذیب کا رنگ دوبالا ہو جاتا ہے۔ ممرا شہر میں آباد مختلف مذاہب کے ماننے والے ملی جلی تہذیب اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اس شہر میں ہندو، مسلمان اور دیگر مذاہب کے ماننے والے مل جل کر زندگی گزر بسر کرتے آ رہے ہیں۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی ممرا کی فضا میں نمایاں تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے، اور ہر طرف روزہ داروں کی چہل پہل، مسجدوں، درگاہوں اور خانقاہوں میں عبادتوں کے روح پرور مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس شہر کا نظارہ غروب آفتاب کے وقت قابل دید ہوتا ہے۔ الحمدللہ، ممبرا ایک ایسا مسلم اکثریتی شہر جس میں ہر سال رمضان المبارک بڑے ہی اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ خصوصی طور پر آخری جو عشرہ ہوتا ہے اس میں عبادتوں کا عام طور پہ اہتمام ہوتا ہے۔ اسی عشرے میں اعتکاف کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ شب قدر بھی اسی عشرے میں ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عشرہ کے آنے سے پہلے خود جو ہے اس کے اہتمام کے لیے چاق و چوبند ہو جایا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو، صحابہ کرام کو تاکید فرماتے تھے، اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اس عشرہ کو منایا جاتا تھا، اہتمام کیا جاتا تھا، اس میں عبادتیں کی جاتی تھی، اور یہ ساری رونقیں، برکتیں اس ماہ مبارک میں ممرا شہر میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ممرا میں رمضان بہت ہی اچھے طریقے سے منایا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ یہاں پر کافی رونق ہوتی ہے۔ پہلے ہم بامبے میں دیکھتے تھے رونق ایسی، لیکن آج بامبے سے لوگ آتے ہیں ممرا کی رونق دیکھنے کے لیے کہ یہاں پر کیسے دکانیں سستی ہے، شاپنگ کا ماحول ہے۔ یہاں پر ایک مارکیٹ ہے گلاب پارک، وہاں پر کافی سستا، مطلب اچھا مارکیٹ ہے، لوگ
काफ़ी दूर दूर से भिवंडी से, थाना से, कल्याण से, दीगर नज़दीक से लोग आते हैं परचेज़ करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें भी मिलती है बॉम्बे से बहुत कम दामों पर मिल जाती है, और सारी चीज़ें एक रूफ़ के अंदर मिल जाती हैं लोगों को, वो अच्छा है यहाँ पर। माह रमज़ान में यहाँ के फर्जंदान तौहीद जब अपने सजदों से मसाजिद को सजाते हैं तो यहाँ की रौनकें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। माह रमज़ान में खाने पीने की अशिया से लेकर तहजीब व सकाफ़त तक मुंबई की छाप दिखाई देती है। दरवाजे रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान। 60 मस्जिद खुले दरवाजे रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया। नाजरीन, देखते ही देखते रमज़ान के अय्याम बड़े ही तेज़ी से गुजरते जा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले की बात थी कि हमने खुश उसलूबी के साथ माह मुक़द्दस का इस्तकबाल किया है, लेकिन अब 2 अशरे गुजर चुके हैं। माह रमज़ान का तीसरा अशरा लग चुका है। आप जानते हैं कि इस्लाम में तीसरे अशरे की कितनी अहमियत है। इसी अशरे में जो है वो ताक़रात को तलाश करने का हुक्म दिया गया है। चलिए आपको ले चलते हैं मुंब्रा की मसाजिद में और जानने की कोशिश करते हैं कि मुंब्रा में लोग किस तरह से इबादत में मशगूल हैं। रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है, एक ऐसा महीना जिसकी अज़मतों और रहमतों का कोई ठिकाना नहीं। रोज़ा एक ऐसा अमल है जिसका सवाब अल्लाह ताला अपने हाथ से अपने बंदों को अता करते हैं। रमज़ान की रहमत व बरकत ये है कि इस माह खास में निफली इबादत का सवाब भी फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है और फ़राइज़ का सवाब आम दिनों के मुकाबले 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। रब फरमाता है अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, रोज़ेदार रोज़ा रख के मुझे हासिल कर लेता है। मुसलमान नमाज पढ़ता है ताकि खुदा मिल जाए, ज़कात देता है ताकि खुदा मिल जाए, हज करता है ताकि खुदा मिल जाए, इस्लाम के अरकान पर अमल करता है ताकि खुदा मिल जाए। यानी खुदा को राज़ी करने के लिए हम हर काम करते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं है कि खुदा राज़ी हुआ कि नहीं। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह खुद कहता है अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, रोज़ा खालिस मेरे लिए होता है और उसका बदला मैं खुद ही हूँ। जहाँ एक और महीनों में अल्लाह तबारक व तआला एक 10 अता फरमाता, इस मुबारक महीने में 70 अता फरमाता है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हम उसका शुमार ही नहीं कर सकते हैं। देने वाला रब्बुल आलमीन है, वो कोई उसकी हद नहीं है, हदबंदी नहीं रब्बुल आलमीन देने की। जितना चाह अपने बंदों को नमाज दे, ये तो लिखने में पड़े हुआ था कि 70 गुना 700 गुना ज़्यादा। लेकिन मेरा अक़ीदा ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप झुक जाइए, ये इतना देगा कि आप शुमार ही नहीं कर सकते हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बात साफ हो जाती है कि तरावी की नमाज की बड़ी अहमियत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने रमज़ान की तरावी को तुम लोगों के वास्ते खुदा के हुक्म से सुन्नत मौक़दा बना दिया है। उलमा इकराम हदीस व कुरान की रोशनी में यही फरमाते हैं कि जिस मुसलमान को रमज़ान का मुबारक महीना नसीब हुआ हो और वो इसके अजर व सवाब से महरूम रहा, उससे ज़्यादा बदनसीब इस रूए ज़मीन पर कोई नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माह मुबारक का अव्वल अशरा रहमत, दरमियानी अशरा मग़फ़िरत और आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। तो ये माह मुबारक बहुत ही मुबारक महीना होता है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। रोज़ा रखना ये अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए है। अगर आदमी रोज़ा रखता है तो उसका सवाब मिलता है, अगर वो रोज़ा नहीं रखता है तो उसका बहुत बड़ा गुनाह है। और क्योंकि रोज़ा फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ को छोड़ना समझ लीजिए इस्लाम से दूर हो जाएगा आदमी। इसलिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े की बड़ी अहमियत और फजीलत बताई है। माह रमज़ान के मुक़द्दस मौके पर मुंब्रा की मसाजिद
बुजुर्ग नमाजियों के साथ मासूम रोज़ादारों से गुलजार हैं। ख़ास तौर पर तरावी के वक्त मसाजिद में नमाजियों का हुजूम देखकर ऐसा महसूस होता है जैसा पूरा शहर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो गया है। मुख्तलिफ मसाजिद में अलग अलग औकात में तरावी की नमाज अदा की जा रही है, जिसमें हर शख्स एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश में रहता है। ये मुबारक महीना आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे अल्लाह के हवाले करता है, बहुत सारी चीज़ें छोड़ देता है, बहुत लग़्व लईब में जो पड़ा रहता है उससे दूर हो जाता है, खालिस अल्लाह की इबादत करता है। आप देखते होंगे मस्जिदें खुली रहती हैं और पूरे शहर के अंदर चहल पहल रहता है, तरावी पढ़ी जाती है, हर हर गली में, हर हर मोहल्ले में, हर हर मस्जिद में अल्लाह ताला का कलाम मुकम्मल तौर पे सुना जाता है और ये सब सुनने का अज्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देते हैं। मुमरा में माह रमज़ान के दौरान जब मसाजिद का रुख कीजिए तो मालूम होता है जैसे तमाम फर्जंदान तौहीद रमज़ान की इबादतों का लुत्फ़ भी ले रहे हैं और ये पैगाम भी दे रहे हैं कि खुदा की वहदानियत के लिए सजदों के चिराग रोशन करने वाले लोग हर दौर में थे और हर दौर में रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि माह रमज़ान के इस आखिरी अशरे में हम सब की मग़फ़िरत फरमाएँ और खुशियों का दिन यानी इनाम का दिन यानी ईद का दिन नसीब फरमाएँ। माह रमज़ान की आमद के साथ ही मुमरा की रौनक में इजाफा हो जाता है। यहाँ पर अनवा व अक़साम के खाने मिलते हैं और सहर अफ्तार का ख़ास इंतज़ाम होता है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मुमरा में किस तरह की रौनकें हैं और यहाँ पर सहर अफ्तार का क्या ख़ास नज़्म है। मत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें, रमज़ान रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। हम मौजूद हैं मुमरा के बाज़ार में, जहाँ पर जो है वो बहुत ही बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं ख़रीदारी के लिए, क्योंकि मुमरा जो है वो मुंबई से लगा हुआ है। इसके बावजूद भी जो है मुमरा को जो है वो सस्ता मार्केट कहा जाता है और यही वजह है कि इस मार्केट में मुमरा के आसपास के तमाम इलाकों के लोग यहाँ पर आते हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए। हम मुमरा के एक ऐसे ही ईद बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों का ईद की ख़रीदारी के ताल्लुक से क्या रुझान है और उनकी पसंद क्या है और मुमरा के बाज़ारों में फ़िलहाल ईद के लिए क्या नया ट्रेंड शुरू है। रमज़ान में इबादत के साथ ईद की तैयारियां भी अहम हिस्सा होती हैं। मुमरा के दुकानदारों को ईद के बाज़ार का साल भर बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मुंबई से करीब होने के बावजूद मुमरा में ईद बाज़ार सजते हैं और यहाँ रमज़ान और ईद से मुताल्लिक़ हर चीज़ की फरावानी होती है। इन बाज़ारों में हर वो चीज़ दस्तयाब होती है जो ईद के लिए लाजमी है। रमज़ान की आमद के साथ ही मुमरा के बाज़ारों में गहमा गहमी बढ़ जाती है। आखिरी अशरे की आमद के साथ मुमरा के बाज़ारों में रोज़ादारों की इतनी भीड़ होती है कि यहाँ रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, सब पाकिस्तानी ड्रेस है, कराची सूट है जिसको बोला जाता है। सामने देखिए गाउन है, गरारा है, लहंगा है। इस तरह की डिमांड है कस्टमर के। ये ईद के लिए नया पैटर्न है, सब नए कलेक्शन है हमारी दुकान में। 2 साल का पेंडेमिक के टाइम पे मार्केट वगैरह सब बंद थी, तो आज हम लोग 2 साल के बाद ये रमज़ान देखे। रमज़ान के इतनी पब्लिक जो है खरीदी के लिए आई है, बहुत दूर दूर से आए। माशाल्लाह से हर दुकान में कस्टमर है, सबको कुछ ना कुछ नए कलेक्शन आए हैं सब दुकानों में, सबके यहाँ भीड़ लगी हुई है। तो कोरोना काल से हम लोग इस बार बहुत अच्छे से माशाल्लाह ख़रीदारी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मतलब बहुत खुशी है कि सब ओपन है और हम लोग आए माशाल्लाह। भी फ़िलहाल कराची का जो चल रहा है पाकिस्तानी सूट्स वो ख़रीदे हैं और बच्चों के लिए मैंने कुछ कपड़े ख़रीदे हुए हैं और अपने शूज़ सब ख़रीदारी हो चुकी है। अभी फ़िलहाल मेरी बहनें भी आ रही हैं शॉपिंग करने के लिए। माशाल्लाह मुमरा में हमारे बहुत अच्छे कलेक्शंस मिलते हैं, कपड़ों से लेके झुमका हुआ, चाहे जो ऑर्नामेंट्स हुआ या अपने चप्पल्स हुए, कोई भी वैरायटी मुमरा में बहुत अच्छे यहाँ पे
कलेक्शंस है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग खरीदना बेहतर समझते हैं मुंबई से। जो 20 साल से हमने मुमरा के अंदर जो मार्केट करे वो हमको और कहीं भी वैरायटी मिली नहीं और ना उतनी सस्ती मिली जितनी सस्ती हमारे को मुमरा के अंदर कपड़े हुए, नकाब हुए, कॉस्मेटिक हुए, चप्पल हुए, जो भी मतलब लगता है लेडीज़ वेयर या जेंट्स का जो भी आइटम है, ईद की शॉपिंग जितनी अच्छी यहाँ मुमरा में होती है उतनी अच्छी कहीं नहीं और जितनी आराम से हो जाती है। काफ़ी कोई क्राउड नहीं, कोई परेशानी नहीं, ना पब्लिक को परेशानी है ना दुकान वालों को परेशानी, बहुत आसानी से बहुत आराम से मुमरा में शॉपिंग हो जाती है। हालांकि बेशतर दुकानदारों के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल के दौरान कोरोना और महंगाई के सबब लोगों की मुआशी हालत अच्छी नहीं, जिसके वाज़े असरात बाज़ार पर भी मुरतब हुए हैं। ताहम मौका रमज़ान और ईद का है तो उम्मीदें तो रोशन हो ही गई हैं। ईद के मौके पर मुमरा ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों जैसे भिवंडी, कल्याण, थाना और न्यू मुंबई के लोग भी इन बाज़ारों का रुख करते हैं और ईद से मुताल्लिक ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करते हैं। बच्चों की शॉपिंग तो हो गई है, लेकिन हम लोग की अभी शॉपिंग बाकी है। मेरे घर वालों ने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, लेकिन मुमरा में ही सारी शॉपिंग हम लोग की होती है, क्योंकि मुमरा से अच्छा कहीं कोई कुछ मिलता ही नहीं है। हर चीज़ें मुमरा में मिल जाती है, ज्वेलरी हो गई, बुरके हो गए, कपड़े हो गए, सारी चीज़ें मुमरा में मिलती है, तो हमको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हमें यहाँ पर ईद की शॉपिंग करना मतलब मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, अच्छे वो सब रहता है, तो इसलिए मुझे यहाँ पसंद है। इसलिए हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते, यहाँ अच्छे कपड़े भी रहते हैं और कम बजट के भी। मेरे को यहाँ पे शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की क्वालिटीज़ वगैरह बहुत अच्छी है और यहाँ पे मतलब ज़्यादा अच्छा कपड़े मिलते हैं। हम लोग बाहर क्यों नहीं जाते, क्योंकि हम लोग की घर भी यहाँ पे, तो ज़्यादा हम लोग ट्रैवल नहीं करते ज़्यादा, इसीलिए हम लोग यहाँ से ही लेते हैं और यहाँ पे कपड़ा भी बहुत अच्छा मिलता है। और मैंने अभी तक कुर्ता ली हूँ और पैंट वगैरह सब ली हूँ। ईद से मुताल्लिक सभी ज़रूरी अशिया की दुकानों पर ख़वातीन और बच्चों की मौजूदगी इस बात का एहसास कराती है कि बाज़ारों में बहुत कुछ दस्तयाब है। मुमरा के बाज़ार की एक ख़ासियत ये है कि ये बाज़ार मुंबई के मुकाबले में सस्ते हैं। यहाँ सस्ती चीज़ें आसानी से मिलती हैं, जिसे हर कोई बआसानी खरीद सकता है। यहाँ के जो लोग ना बम्बई जाते थे ना, आज उनकी इतनी सहूलत हो गई है कि लोग यहाँ आते हैं और बम्बई वाले भी यहाँ आ रहे हैं माशाल्लाह। बम्बई के आपको पूना से, नासिक से और यहाँ मालेगांव, ये सब लोग यहाँ के सब एरिया के ना इर्द गिर्द के सब लोग यहाँ पे माशाल्लाह आ रहे हैं और आके यहाँ पे खरीदी करके जाते, बोलते हैं यहाँ पे यानी सस्ता मिलता है। मार्केट वो हिसाब से लोग यहाँ से आते हैं। तो बम्बई में आपको 1000 में मिलता है, यहाँ पे 600 मिलता है। खास बात ये है, जो वहाँ पे आपको 2000 की मिलेगा वो यहाँ पे 1000 रुपये मिलता है। ईद के लिए यहाँ पर मेकअप में ज़्यादा चीज़ अवेलेबल है, मेकअप, बैंगल्स, यही सब अवेलेबल है, क्योंकि कॉस्मेटिक की डिमांड है, बैंगल्स की डिमांड है, यही सब चीज़ की। ख़वातीन ईद पर पहनने के लिए रंग बिरंगी चूड़ियाँ, मसनूई जेवरात और तज़ियों आराइश के साथ साथ ज़रूरत व आसाइश पर मबनी अशिया की ख़रीदारी भी खूब कर रही हैं। अभी ईद का मौका है, वो हिसाब से हमारी शॉप में तो हर चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो रही है। जो भी चीज़ लाओ ईद के मौके पर हर चीज़ ही बिक रही है, कॉस्मेटिक्स में हो या बैंगल्स में हो, हर चीज़ बिक रही है। यहाँ पे मैं शॉपिंग करने आई हूँ। जैसे मैंने 2 जोड़ी कपड़े ले लिए, पाकिस्तानी सूट और कराची सूट, और अभी मैं ज्वेलरी लेने आई हूँ मेरी मम्मी के लिए और मेरे लिए। और यहाँ पे बहुत अच्छी ज्वेलरीज मिलती है, ज्वेलरी से लेके सब मिलता है, शूज़, कपड़े, सैंडल, हील्स, सब मिलता है। माह रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद उल फित्र का दिन इनाम का दिन तसव्वुर किया जाता है और ये इनाम उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने माह रमज़ान के रोज़े रखे और अपने रब का हुक्म बजा लाए। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, मुमरा के बाज़ारों में लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकी का मुमरा एपिसोड। आपने देखा कि मुमरा में जो है वो किस तरह की बाज़ारों में गहमा गहमी है और यहाँ पर माह रमज़ान किस तरह से मनाया जाता है। वक्त तो चला है आपको अलविदा कहने का।
کل ایک نئے شہر کے ساتھ آپ کے روبرو پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا.